ओके बेटा, दिस वन ओके, दिस टू। रुको रुको, तुम्हें सच में लगता है ये सब ठीक है? मुझे नहीं लगता, तुम गलत कर रही हो। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। आखिरकार बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और उन्हें कभी कभी चिप्स दे देना चाहिए। तुम्हें पता भी है जंक फूड बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा तेल और नमक होता है और न्यूट्रिएंट्स तो बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर ये इसे रोज़ खाएगी तो उसे ओबेसिटी, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तुम उसे घर के हेल्दी स्नैक्स दो। मैं कुछ समझी नहीं। अब जब हम इस टॉपिक में इतना डीप डाइव कर ही रहे हैं तो चलिए उसे और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। फूड हेल्थ से लेकर फूड कंजम्पशन तक सब कुछ होगा इस डिस्कशन में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वह उनकी छोटी से छोटी ज़िद पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी यही छोटी छोटी ज़िद पूरी करना उन्हें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स दे देता है। ऑब्वियसली आप सभी के बच्चे भी आपसे स्नैक्स तो मांगते ही होंगे, जैसे कि चिप्स, नमकीन, चॉकलेट, कुरकुरे एट्सेट्रा। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छी हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार बना देती हैं, जैसे वेट गेन, ओबेसिटी, पीसीओडी, पीसीओएस एक्सेट्रा। और इसी चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आज हम सभी आपको पोषण पखवाड़ा के बारे में बताएंगे। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Today I, Akula, and my friends are here to tell you more about Poshan Pakhwada. Poshan Pakhwada is a 2-week awareness program under the Poshan Abhiyan. Poshan Pakhwada aims to teach us about healthy living and good food. Poshan means nutrition, which makes our body strong and healthy. Poshan Pakhwada aims to spread awareness and encourage community participation towards good nutrition and healthy living. कुपोषण को जड़ से मिटाना है, सुपोषण की लहर चलाना है। अपने बच्चों को करे खूब सारा प्यार, मगर दे घर का बना पौष्टिक आहार। So with this quote, I and Kaushiki would like to tell you about the two important key components of our daily living: food and health. Food is any substance that we consume or drink, but it should provide nutrition to us, such as fats, vitamins, carbohydrate, minerals or fibers. These nutrition combinedly help us in our growth and development. Now what is health? जीवन के दो अनमोल धन, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन. So with this quote, I'll tell you about health. Health is not only not being sick, but it is also the perfect physical, mental and social well-being. When food and health combines, it provides us comfort and cleanliness in our mind. These small steps will create a huge impact in our society. Now let's talk about balanced diet. आप अपने बच्चों को लंच में अक्सर क्या देते हैं? क्या आप बैलेंस डाइट को ध्यान में रखकर डिसाइड करते हैं? Well, if you don't know what balanced diet is, it is a meal plan that provides all the essential nutrients, carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals in the right proportion to maintain good health. Simple changes like including fruits, vegetables, whole grain and lean protein to the diet can make a significant difference. A balanced diet helps the body function properly, boosts immunity, supports growth and development, and reduces the risk of chronic illness. Apart from that, adequate amount of water intake and the lesser consumption of sugar and salt are the major factor of balanced diet. घर वो जगह होती है जहां हम दुनिया के बारे में सबसे पहले जानते हैं। शुरुआत से ही अच्छी आदतें बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी शुरुआत घर से ही होती है। That's why providing proper nutritious meal at home is very crucial to build a healthy foundation for everyone in the family. Balanced diet support physical health, mental well-being and long-term development, especially among the growing children. Avoiding packed and sugary snacks helps us prevent a lot of diseases like diabetes, PCOD, obesity, etc. Ultimately, when we prioritize healthy meals at home, we are doing nothing but investing in health and happiness of our loved ones. आजकल की सिटी लाइफ में पेरेंट्स इतने बिजी हो गए हैं, उनके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों के लिए कुछ हेल्दी मील प्रिपेयर करने का. That's why we are here to introduce you some quick healthy recipes for busy parent. You guys can make vegetable pulao, dal tadka with rice, upma, besan chila which is very popular among kids,
सैंडविचेस किस बच्चे को पसंद नहीं होता, बट व्हाट इफ वी अपग्रेड दैट नॉर्मल सैंडविच इनटू मल्टीग्रेन सैंडविच। हेल्दी का हेल्दी हो जाएगा और थोड़ा फैंसी भी हो जाएगा। अ हेल्दी मील टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। क्या आपको पता है आपके बच्चों का पहला न्यूट्रिशन टीचर कौन है? ये एक स्कूल नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है, यहाँ तक कि एक डाइटिशियन भी नहीं, ये आप हैं। From the moment they watch you reach for the snack to the meal you serve at the dinner table, you are their inspiration, their guide, their example. As a parent, your role is very crucial in fostering healthy food habits. अननोइंगली कुछ पेरेंट्स जंक फूड को एज अ ट्रीट या फिर रिवॉर्ड कंसीडर करते हैं। वो अपने बच्चों से टास्क कंप्लीट करवाने के लिए उन्हें जंक फूड का लालच देते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा अपना होमवर्क नहीं करता है तो उसके पेरेंट्स उसे लालच देंगे कि अगर तुम अपना होमवर्क कर लोगे तो मैं तुम्हें जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स एक्सेट्रा ये सब दिलाऊंगा। बट उन्हें पता नहीं होता ऐसा करके वो अपने बच्चों की हेल्थ के साथ खेल रहे होते हैं। So let's take a moment to reflect what small choices as a parent you can build today, so build a healthier and happier tomorrow. अगर आपका बच्चा आपसे सॉफ्ट ड्रिंक मांगता है तो आप उसे होममेड शिकंजी या फिर लेमोनेड ऑफर कर सकते हैं, एंड दीज आर मच मोर फ्लेवरफुल एंड हेल्दियर। अगर आपका बच्चा आपसे पिज़्ज़ा मांगता है तो आप उसे होममेड पिज़्ज़ा दे सकते हैं विथ होल ग्रेन बेस, टमाटो सॉस एंड लॉट्स ऑफ वेजीज। और ये आपके बच्चों के लिए एक DIY एक्टिविटी भी हो जाएगी। बच्चे अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली उस पिज़्ज़ा को डिज़ाइन कर सकते हैं विथ वेराइटी ऑफ कलरफुल वेजिटेबल्स। इफ़ योर चाइल्ड से Mama, I want momos. instead of saying no, say this. How about we make homemade momos stuffed with colorful veggies, soft paneer and lots of love. Maintaining hygiene and cleanliness in preparation of food is crucial to prevent foodborne illness and ensure food safety. Well, क्या आपने अपने बच्चों को किचन हाइजीन के बारे में बताया है? किचन हाइजीन में कुछ आदतें ज़रूरी होती है, जैसे समय पर हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना और बालों को बांधना भी ज़रूरी है। जो खाना बन जाए उसे ढककर और अलग अलग बर्तनों में रखा जाए। जो खाना बच जाए उसे साफ बर्तन में और सही टेम्परेचर के साथ रखा जाए। सही टेम्परेचर और सही तरीके खाने को ख़राब होने से बचाते हैं। इससे गंदगी और खाने को ख़राब होने का खतरा कम होता है। Now let's know about storage. Do you know that कई पेरेंट्स रात का गुथा हुआ आटा सुबह रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या रात को काटी हुई सब्जी से सुबह सब्जी बना देते हैं। पर क्या आपको पता है कि आपकी ये छोटी छोटी गलतियाँ आपके बच्चों की हेल्थ को कितना नुकसान पहुँचाएंगी? तो आइए मैं आज आपको बताऊंगी कि सही तरीके से स्टोरेज कैसे किया जा सकता है। द राइट मैनर टू स्टोर द फूड इज एज द फॉलोइंग. If you want to store some milk products such as dahi, chas, lassi or malai, try to store them at 0 to 4 degrees Celsius in refrigerator. And what about the cereals, pulses or wheat you buy? First wash them properly, dry them in sunlight and then only store in your gunny bags. And what about your peeled fruits and vegetables? Kindly avoid them, because it will lose some of its nutritional value. But still, if you are doing so, then kindly wash them properly and then only feed your loved ones. Remember, हम थोड़ा सा समय ज़रूर बचा सकते हैं, पर ये हमारे प्रियजनों के हेल्थ से ज़्यादा तो कीमती नहीं है। आइए अब अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं। क्या आपको पता है लेफ्ट ओवर फूड कितने टाइम तक कंज्यूमेबल होता है? आमतौर पर लेफ्ट ओवर फूड को फ्रिज में रखने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर खा लेना चाहिए। अगर उसे ठीक से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखा जाए तो ये खाने के लिए बिल्कुल सही होता है। बट बिफोर कंज्यूमिंग आपको उसे 75 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर लेना चाहिए to kill all the bacteria and germs present in it. What students eat is important, but how it is prepared and served is just as crucial. Maintaining hygiene and cleanliness during food consumption is important to prevent illness and promote overall health.
So let's talk about some basic tips and tricks that you can follow for maintaining hygiene and cleanliness during the consumption of food. Always keep your nails trimmed and clean. Use clean plates and utensils. Always wash your hands with soap and water before eating the food. And try not to eat while walking or driving. It's less hygienic. इन सारे छोटे छोटे तरीकों को फॉलो करके आप खुद को और अपने फैमिली को बीमार होने से बचा सकते हैं। पोषण का पावन पर्व है आया, जन जन में स्वास्थ्य का दीप है जलाया। आओ मिलकर संकल्प ले हम, कुपोषण को जड़ से मिटाएं हम। संतुलित आहार का महत्व पहचाने, फल, सब्जी और अनाज को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दूध, दही और दाल बनेंगे भोजन का अंग, तभी हर बच्चा रहेगा स्वस्थ और चंग। घर घर पहुँचे स्वस्थ जीवन का संदेश,